Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released a series of informative videos on the subject of magnetism. Aimed at Class 12 boards, IIT, NEET, and various CET aspiring students, these videos provide a comprehensive understanding of this fascinating topic. Magnetism, a phenomenon that has intrigued mankind for centuries, plays a vital role in various fields such as physics, engineering, and medicine. The videos cover fundamental concepts like magnetic fields, magnetic forces, and magnetic induction. Students will also learn about important laws and principles, including Ampere's law, Faraday's law, and Lenz's law. The tutorials delve into practical applications of magnetism, such as magnetic materials, electromagnets, and generators. Ignited Minds Tutorials ensures that these videos are not only educational, but also engaging. They utilize interactive visuals, animations, and real-life examples to enhance the learning experience. The content is presented in a concise and easily understandable manner, making it accessible to students of different learning abilities. By exploring magnetism through these meticulously curated videos, students can develop a strong foundation in this subject. Ensuring success in their academic endeavors, the tutorials not only cater to the requirements of Class 12 boards, but also assist those preparing for competitive exams like IIT JEE, NEET, and CET. Ignited Minds Tutorials aims to empower students with the knowledge and skills necessary to excel in these examinations and beyond. To access this valuable resource on magnetism, interested students can visit the official website of Ignited Minds Tutorials or subscribe to their YouTube channel. Start your journey towards a deeper understanding of magnetism today. Okay, बच्चा पार्टी yesterday we saw कि आपका basically Biot-Savart's law क्या होता है. Biot-Savart's law is what it is expressing the magnetic force. ठीक है, तो magnetic force भाई साहब क्या हो जाएगा? What will be the magnetic force? क्या हो गया भाई साहब? ठीक है, so this is magnetic force. What is the magnetic force that is acting on a particular point which is vectorially at a distance of r from this current element IDL. ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका dB? This will be equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta होता है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं I dl into r. ठीक है, अपॉन भाई साहब r cube. And yesterday we saw how we are arriving at this formula. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर अमीटर पर मीटर और टेस्ला. ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है. ठीक है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कितना है? 10⁻⁻⁷. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल. तो आप इस तरह से फिंगर्स को इनक्लोज करेंगे, जो आपका जो थंब है दैट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ठीक है, ओके, सो लेट्स से भाई साहब यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं, तो लेट्स से ये वाला पॉइंट है, देखो. ठीक है, ये करंट जा रहा है. ठीक है, हाउ डू वी डिटरमिन द डायरेक्शन? तो हमने क्या किया भाई साहब? करंट के डायरेक्शन में थंब को पॉइंट किया हुआ है ऐसे. ठीक है, वी आर बेसिकली पॉइंटेड द, ठीक है, सो टॉप व्यू ऑफ राइट हैंड, मतलब ये करंट जा रहा है. देखो, तो हमारा थंब कैसा है भाई साहब? ये समझ लो, तो ये ऐसे जा रहा है भाई साहब. ठीक है, टॉप व्यू ऑफ राइट हैंड. तो हमारे राइट हैंड को हमने ऐसे रखा हुआ है. टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस योर राइट हैंड पाम अलोंग द करंट एलिमेंट DL. राइट हैंड पाम को अपने करंट एलिमेंट DL में रखा है. एंड कर्ल योर फिंगर्स अलोंग R. तो आप R में इसको कर्ल कीजिए, ऐसे R में हम इसको कर्ल कर रहे हैं. ठीक है, जो आपका भाई साहब वेक्टर में होता है, A से B में जब आते हैं, जब जाते हैं किसी वेक्टर में, A से B में आप जब जा रहे हैं, सो A इंटू B किया तो आप A से B में जा रहे हैं, तो ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा. तो सेम थिंग अप्लाइज हियर. ठीक है, तो यहाँ पे आप किसके किसके बीच में है? R और DL में है. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला बच्चा पार्टी? फॉर्मूला क्या है भाई साहब आपका? DL इंटू R. तो आप DL से R में क्लोज कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज बेसिकली योर DL और ये आपका भाई साहब क्या है? R है. ठीक है, सो DL से R में आप ऐसे क्लोज कर रहे हैं. क्या समझ में आ रहा है? ये आपका करंट एलिमेंट DL है और ये आपका R है, तो आप ऐसे क्लोज कर रहे हैं. वी आर क्लोजिंग इट लाइक दिस. सो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरफ होगा? इनसाइड द बोर्ड या इनवर्ड या इनसाइड योर पेपर. ठीक है, जो पेपर है आपका,
तो यहाँ पे देखो आपने देखा कि जब इनसाइड होता है तो हम इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें आते हैं, देखो इसमें आपका R इंटू DL क्या हो जाएगा बोलो। आप अगर भाई साहब यहाँ पे DL है, DL से R की तरफ जा रहे हैं, अभी आप देखो कैसे जाएंगे, ये आपका DL है इस तरफ, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो DL से आप R की तरफ क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, DL से आप R की तरफ क्लोज कर रहे हैं। सो यू विल हैव योर थंब प्लेस लाइक दिस। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो DL मतलब ये, और R की तरफ क्लोज कर रहे हैं आप, ये ऐसे क्लोज कर रहे हैं। सो वेयर इज योर थंब पॉइंटिंग? टुवर्ड्स योरसेल्फ, ठीक है। तो आउट ऑफ द बोर्ड और आउट टुवर्ड्स यू, आउट ऑफ योर पेपर, तो ये टुवर्ड्स यू होगा, इसलिए आपका डॉट हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस? तो इस तरह से हम डिटरमिन करते हैं कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब क्या है? देखो यहां पे आप इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, ये आपका आइडियल है और ये आपका आर है। सो वेयर आर यू गोइंग फ्रॉम? आइडियल से आर की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो आपका डायरेक्शन किस तरफ हो गया? इस तरफ, तो इट इज इनवर्ड्स। और यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है आपका? देखो आइडियल किस तरफ है आपका? देखो करंट, अभी आप किधर से किधर जा रहे हैं, तो आपका डीएल इस तरफ है, डीएल इस तरफ है और आर इस तरफ है। सो यू आर इनक्लोजिंग योर फिंगर्स लाइक दिस। ये डीएल है, आप आर की तरफ जा रहे हैं, ये आपका आर है, ठीक है। तो यू आर क्लोजिंग योर फिंगर्स लाइक दिस, सो द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, व्हिच मींस दैट द एक्चुअल आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ यू डिटरमिन द डायरेक्शन। वी can also use the right hand grip rule to find the direction of magnetic field. This rule has been discussed. मैं बोलूंगा आइडियल को अगर आपको देखना ही है ना, तो ऐसे देखो भाई साहब, राइट हैंड थंब रूल, करंट ऐसे जा रहा है ना, तो सिंपल ऐसे कर लो, ठीक है। इसका मतलब देखो आपका फिंगर्स कैसे ऐसे है, तो करंट अंदर की तरफ जाता हुआ इधर से की तरफ निकलता हुआ, ऐसे घुमाओ, देखो आपकी तरफ निकल रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है। सो ये भी एक ईजी वे है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल अगर हम ले लें, ठीक है। अदरवाइज वेक्टर के रूल से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट हैंड ग्रिप रूल मतलब क्या है? देखो अगर समझ लो आपने मान लिया कि करंट जो है आपके मुट्ठी में है, ग्रिप में, और ये जो थंब है दिस इज बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। सो पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो एंड कर्ल योर फिंगर्स, द डायरेक्शन ऑफ योर फिंगर्स विल मिरर द कर्ल डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भाई साहब आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दोनों तरीके से आप भाई साहब इसको डिटरमिन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, अगर आपने कोई स्ट्रेट वायर लिया है देखो, और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का पीस रख दिया, और उस कार्डबोर्ड के पीस में ये आयरन के चूड़े मतलब देखो कैसा बोल सकते हैं हम, ये जो वेल्डिंग का काम करते हैं, कटिंग का काम करते हैं, कर ऐसा चलता रहता है देखो, ठीक है। तो उसमें देखो नीचे ऐसे आयरन के चूड़े गिरते रहते हैं, ठीक है। तो इनको अगर आपने स्प्रिंकल कर दिया, यू विल सी दैट इट इज फॉर्मिंग डेफिनेट सर्कल, एक सर्कल पैटर्न मिलेगा आपको। ये आपने पहले इसको ऐसे मतलब ऐसे छिड़क के रखा है, आप देखोगे जैसे इसमें से करंट पास करोगे, दे विल ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन डिफरेंट सर्कल पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न्स में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। दीज सर्कुलर पैटर्न्स आर नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज क्रिएटेड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जितने भी सर्कुलर पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, नोटिस एज सून एज वी हैव चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स चेंज्ड, ठीक है। जैसे ही भाई साहब आपने करंट का डायरेक्शन चेंज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है। So that is how the circular patterns will be. Magnetic field a straight carrying finite wire है, ठीक है। ओके, तो अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे एक पॉइंट P है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग फाइनाइट वायर। ये भाई साहब एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट जा रहा है, इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है? हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? ठीक है, लेट्स से अपन ने मान लिया भाई साहब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर अपन ने डाल दिया पहले, ठीक है। इसमें हमने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया, इस पूरे वायर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए भाई साहब, टुकड़े नहीं किए मतलब ऐसे सेगमेंट्स ले लिए, और ये सेगमेंट आपका डीएल लेंथ का है, ठीक है, डीएल लेंथ का। ये डीएल वाला लेंथ भाई साहब आपका कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? देखो ये वाला, ये आपका कितना बना रहा है? थीटा। ये हो गया 90, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? This DL segment with this point P at which you are supposed to find the magnetic field will be making an angle of how much? Pi by 2 minus theta, 90 minus theta. Are we clear on this one? Suppose we want to find the, अभी भाई साहब हमको क्या फाइंड, अरे यार तू, ठीक है। Suppose we want to find the magnetic field at point P due to the current carrying wire. ये मैग्नेटिक फील्ड अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है भाई साहब? थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला कितना है? 90 है, ठीक है। ओके, सो टू डू दिस लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन द वायर। तो हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया भाई साहब,
कंसिडर अ करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, तो ये हो गया भाई साहब आपका करंट एलिमेंट dl, ठीक है। करंट एलिमेंट dl एट अ डिस्टेंस l, तो भाई साहब आपका कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम द फुट, तो आपका भाई साहब यहां से इसका डिस्टेंस कितना है भाई साहब l, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया l, ठीक है। ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज a, तो हमारा भाई साहब हमने मान लिया कि ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, ये वाला लेंथ कितने का है, a का है, ठीक है। एंड द करंट एलिमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर, ये करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट परपेंडिकुलर के साथ, ये वाला जो परपेंडिकुलर है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट dl, ये कितना हो जाएगा, सो dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय r का स्क्वायर, अभी आपने देखा भाई साहब, ये तो अपन कर चुके हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये हो गया आपका आई dl, ठीक है, आई dl, ये थीटा आपका कितना होगा बोलो, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं अपन, डेरिवेशन में ये पॉइंट जो था इस dl के साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा। अब की बार तुम्हारा क्या है भाई साहब, पाई बाय 2 माइनस थीटा है, ठीक है। सो यू विल ऑब्वियसली राइट साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। सो r इज व्हाट, ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज r, क्लियर है। ये साइन 90 माइनस थीटा क्यों लिया है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। आपका डेरिवेशन जो था बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से, बायो-सावर्ट लॉ क्या बोल रहा है कि अगर ये करंट एलिमेंट है और ये थीटा है, ये कोई पॉइंट है, तो भाई साहब हम dB को क्या लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट विल बी आई dl sin थीटा अपॉन r का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्मेट में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्मेट विल बी इक्वल टू आई dl इंटू r, ये सीक्वेंस याद रखिएगा क्योंकि वेक्टर में कौन सा वेक्टर पहले आता है वेक्टर प्रोडक्ट में वो मैटर करता है, ठीक है, बाई r का क्यूब, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया ना भाई साहब, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, दिस इज थीटा, दिस इज 90, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो दिस टाइम द एंगल हियर विल बी 90 माइनस थीटा, आर वी क्लियर, एंड 90 माइनस थीटा साइन इज cos थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी ऑब्वियसली cos थीटा, क्या ये समझम भाई साहब। ओके, तो आपका यहाँ पे अभी आप क्या करोगे, चालू हो गया हिस्टेरिकल लाफ्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, अभी आप इसको ऐड करते जाएंगे, इन सेगमेंट्स को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin 90 minus theta upon r square हो गया, sin 90 minus theta is known to us to be cos theta. Now we are going to add these segments and this addition is nothing but integration, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम dB को, तो ऐसे dB का इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहां से कहां तक होगा भाई साहब, देखो यहाँ पे इस चीज को समझो, ये वाला जो है आपका φ1 एंगल बना रहा है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट, ये किस टाइप का वायर है, अगेन टू स्टार्ट विथ इट वाज अ फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर मतलब जिसका लेंथ फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं। तो दिस पॉइंट A was making an angle of φ1, this point B was making an angle of φ2, so obviously between what angles, यहां पे आपने dl एक उठाया जिसका एंगल कितना था पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो अगर मेरे को पूरे इन सबको सेगमेंट्स को जोड़ने हैं तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा, φ1 से माइनस φ2 तक, या आप बोल सकते हैं माइनस φ2 से φ1 तक। माइनस क्यों ले रहे हैं, anything which is taken below the x axis on y axis is taken as negative and anything above the x axis is taken as positive. So obviously आपका ये वाला हम मान लेते हैं कि ये x axis है, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन जो हो जाएगा that will be positive, इसके नीचे वाला पोर्शन जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका माइनस φ2 से φ1 तक, क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है भाई साहब। The point A and B make angle φ1 and φ2 with respect to the perpendicular line that has been drawn from the point P, but notice the direction of measurement of the angle, they are opposite to each other, that's the reason आपका भाई साहब माइनस φ2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन आपका इस तरह से ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, चलिए भाई साहब इसको सॉल्व करते हुए अभी नाउ लेट्स मूव ऑन, यहां तक तो हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। यहां पे आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया, दिस डेरिवेशन इज ऑलरेडी देयर। नाउ cos थीटा कैसे आया, sin 90 माइनस थीटा से आया, ठीक है। cos थीटा यहां पे बेसिकली है क्या, ठीक है। cos थीटा यहां पे भाई साहब क्या है, देखो ये आपने मान रखा था क्या a, ये वाला डिस्टेंस आपने मान रखा था l, और ये था आपका r, तो व्हाट विल बी cos थीटा a बाई r, भाई देखो थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a बाई r हो जाएगा, cos थीटा विल बी a बाई r। तो अगर अपन ने r को इस तरफ ले लिया तो दिस विल बी a बाई cos थीटा विच इज r इज इक्वल टू a बाई cos थीटा और a sec थीटा। तो r स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, tan थीटा क्या है, ऑब्वियसली हमको दिख रहा है भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी l बाई a, ठीक है। तो l इज इक्वल टू a tan थीटा।
तो डीएल की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, इस एक्चुअली में हमको क्या करना पड़ेगा, इस कॉस्ट, अरे तुम जाओ, कहाँ आते हो अपन बुलाए मेहमान, भाग यहाँ से, ठीक है। ये हो गया डीएल, ठीक है। तो एल हो गया आपका ए tan थीटा, तो डीएल क्या हो जाएगा भाई साहब, डीएल मैंने अब आपने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, ठीक है। डीएल क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा, तो उसी बहाने किसी दिन मुझे पीटेगा भाई साहब, ये अंदरूनी तुम्हारी जो इच्छा है ना वो हम भाप लिए हैं, ठीक है। तो ए tan थीटा हो गया, डीएल हो गया ये ए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो डीएल बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। तो अभी हम डीबी को कर रहे हैं, फाई 2 से फाई 1 म्यू नॉट बाई फाई हो गया आई, अपन ने यहाँ पे आई की जगह पे ये देखो डीएल की जगह पे क्या लिखा है, देखो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ध्यान दीजिए इस डीएल की जगह पे, क्योंकि अपने को इंटीग्रेट करना है। जब अपन इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे एक dx या डी थीटा होना चाहिए, ये डी थीटा हम कहाँ ले जाएंगे, ठीक है। सो यही डी थीटा हमारा इससे निकल रहा है, क्योंकि L इज इक्वल टू आपका ए tan थीटा हो गया। अगर हमने दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया तो अपने को क्या मिलेगा, DL विल बी इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए tan थीटा, ए कांस्टेंट बाहर निकला, tan थीटा का डिफरेंशिएशन आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, DL इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। तो इसी DL की जगह पे अपन ने क्या लिखा, ए सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा आ गया भाई साहब आपका, ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा पहले से मौजूद है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इस आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ए बाई कॉस थीटा। ध्यान दो यहाँ पे हम ये सारे कन्वर्जन्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, थीटा के प्लेटफॉर्म पे लाना है, ठीक है। इसीलिए अपने आर को क्या लिखा हुआ है, ए बाई कॉस थीटा, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो आपका कितना हो जाएगा, देखो म्यू नॉट बाई पाई आई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन ए बाई कॉस थीटा। इस सारे का तोड़ जोड़ निकालो भाई साहब, यहाँ पे कॉस थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है, तो एक कैंसिल होगा, नीचे क्या बचा भाई साहब आपका, एक कॉस थीटा बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा आपका, आई ए 1 बाई कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पे क्या ए बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल होकर एक कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, यहाँ पे कट्टम कुट्टम समझ में आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है मतलब अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस थीटा इसके साथ कैंसिल हुआ, तो नीचे डिनोमिनेटर में एक कॉस थीटा बचा, नीचे वाले के डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक एक कैंसिल हुआ, तो एक कॉस थीटा बच गया नीचे वाले के डिनोमिनेटर में, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर टपकेगा, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा डी थीटा। और यहाँ पे क्या बचा भाई साहब आपका ए, क्योंकि ए स्क्वायर था इधर और इधर ए था, तो एक कैंसिल हुआ, तो ए बचा आपका। दिस इज व्हाट वी आर सिंप्लीफाइंग इट इनटू। तो आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे आपका आई बाहर आया, ए बाहर आया, क्यों, क्योंकि आई आपका कांस्टेंट है और ए जो डिस्टेंस है पॉइंट का यहां से यहां तक वो भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बाहर आ गया भाई साहब। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आपको क्या ही देगा, साइन थीटा, सॉरी इंटीग्रेशन आपको साइन थीटा देगा बिटवीन फाई 1 एंड माइनस फाई 2, ठीक है। तो ये हो गया साइन फाई 1 माइनस साइन ऑफ माइनस फाई 2, और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2, ठीक है, प्लस साइन फाई 2 हो गया आपका, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और यहां पे आपका इस एक्सट्रीम पॉइंट का एंगल परपेंडिकुलर से फाई 1 बन रहा है और इस एक्सट्रीम पॉइंट का एंगल परपेंडिकुलर से फाई 2 बन रहा है, तो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I by A, where I is the current and A is the distance of this point, sin phi 1 plus sin phi 2. Are we clear for this derivation people? बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग, खासकर आप, ठीक है। जाइए भाई साहब वहां पे अय्याशी